пассажирски и ако пътуват екипажи, приветстваме добре дошли на борда на нашия полет с полет до Франкфурт Хам. Аварийните изходи са отбелязани с знаците Exit. On this aircraft there are a total of 8 emergency exits. Самолетът има 8 аварийни изхода. 2 exits are in the front, 2 изхода в предната част на самолета. 4 exits are in the cabin, in front and behind the wings, 4 аварийни изхода в салона в предната част и зад крилата. 2 exits are in the rear, 2 изхода в задната част на самолета. In the event of an evacuation, it is important to leave your luggage and follow the floor path marking which will guide you to the emergency exit. В случай на евакуация е важно да оставите багажа си на борда и да следвате маркировката на пода, която води към аварийните изходи. Please take a moment to locate the exit nearest you, keep in mind that it might be behind you. Огледайте се, вижте къде най-близкият изход, който може да се намери зад вас. Съветваме как да използвате предпазните колани. To passengers seatbelt for GNs together and tightening by pulling the walls and don't fasten, leave the cover with a buckle. Закопчайте колана, като натиснете двата му края един в друг и го затегнете, като издърпате свободния край. Разкопчайте колана, като повдигнете капачето на катарамата. Возете ги изравните маски. The oxygen masks are located in the panels above your head. Изравните маски се намират в панели над вас. In case of loss of cabin pressure, the oxygen masks are automatically released. В случай на разкрепчизация, кислородните маски падат автоматично. When the release, pull the nearest mask towards you, this will activate the flow of oxygen. Издърпайте маската, която е най-близо до вас. Това ще активира потока на кислород. Place the mask over your nose and mouth, secure the strap and breathe normally. Сложете маската върху носа и устата си, затегнете ластика, дишайте нормално. After putting on your own mask, please help anyone who may need your assistance. For further information, you'll find a safety instruction card in the seat pocket in front of you, which contains the important safety features of this aircraft. Повече информация ще намерите в картата за безопасност, джоба на кръстовото пред вас. Тя съдържа важни характеристики за безопасност на този самолет. Thank you for your attention. Thank you, cabin. जी हमारा सफ़र जो बुल्गारिया से स्टार्ट होने जा रहा है सोफिया एयरपोर्ट से, ये आप देख सकते हैं कि जहाज़ विज़ एयर जो है वो अभी उड़ान भरने की तैयारी में है। आहिस्ता आहिस्ता रनवे से अपनी उड़ान वाली जगह की तरफ स्टार्ट ले चुका है। जिस तरह के नॉर्मल रूटीन में जहाज़ का सफ़र का आगाज़ जो होता है स्लोली जो अपनी जहाँ पे उसने उड़ान भरनी है उस रनवे पे पहुँच जाएगा तो फिर वो देखें कुछ जहाज़ आपको नज़र आ रहे हैं खड़े। अगर आप गौर करें तो सोफिया एयरपोर्ट या सोफिया शहर की अतराफ़ में पहाड़ बड़े घने जंगलात के साथ आपको नज़र आएंगे। बड़ा खूबसूरत मौसम है आज, बादल और नीला आसमान सूरज के साथ आँख मचोली का मंजर पेश कर रहे हैं। और ये जो एयरपोर्ट सोफिया इसका वो रनवे जिसके ऊपर हर जहाज़ अपनी उड़ान भरने से पहले चंद मिनट के लिए टेस्ट करते हैं पायलट्स के एवरीथिंग हर चीज़ ठीक है। कुछ बच्चे एक ग्रुप की शक्ल में आए हुए आपको नज़र आ रहे हैं। गालबन बच्चे स्कूलों के आते हैं एयरपोर्ट देखने के लिए कि कुछ जहाज़ जो पार्क हो चुके हैं वो आप देख रहे हैं। ये देखें अभी आपके सामने ये गुलीव एयर इसके 2 जहाज़ खड़े हैं। ये जो एयरपोर्ट है ना सोफिया बुल्गारिया का दारुल, यहाँ पे टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 हैं और जो टर्मिनल 1 है ये पुराना है, टर्मिनल 2 जो है वो कुछ नया मॉडर्न है। लेकिन ये गुलीफ एयर गालबन ये यहाँ की कोई मुकामी एयरलाइन है जिसके जहाज़ 3 यहाँ नज़र आ चुके हैं। बाकी जैसा आपको पहले बताया कि पहाड़ों के बीच में ये एयरपोर्ट बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करता है। अभी जहाज़ उस मुकाम पे पहुँच गया है जहाँ वो एकदम ये देखें आवाज़ बुलंद होती जा रही है। अभी इसने पूरे इंजन जो है वो स्टार्ट कर दिए, स्टार्ट ले लिया इसने। अभी ये बिल्कुल उड़ान भरने के लिए तैयार है। देखते हैं आपको ये मंजर साथ साथ दिखाते हैं किस तरह का मंजर होता है जब एक जहाज़ फ्लाई करता है, कितनी स्पीड के साथ पहले उसने दौड़ना होता है। बाहर आपको खड़े काफ़ी जहाज़ नज़र आ रहे हैं जो गालबन पार्क किए गए हैं। कुछ दूसरे जहाज़ हैं मिलिट्री
टेम्परेचर ले लिया उसने बुलंद। अब ये आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ उड़ता चला जाएगा। ये देखिए नीचे अगर आप देखते हैं तो ये मकान जो है सोफिया शहर के आबादी, वो आपको यहाँ बड़ी क्लियर कट नज़र आ रही है और बड़ा खूबसूरत मंजर भी पेश कर रही है। यह सोफिया शहर जो कि बुल्गारिया का दारुल खलाफा है, उसकी खूबसूरत मंजिलें बिल्डिंगें आप इस वक्त देख रहे हैं। और इसके अंदर चंद छोटी छोटी जो झीलें हैं उस पर भी आपकी नज़र पड़ेगी। धूप के अंदर बड़ा क्लियर कट मंजर है। ये देखिए अब हम इतनी बुलंदी पे पहुंच गए हैं कि बाज़ जो इमारतें हैं वो छोटी छोटी नज़र आनी शुरू हो गई। इस मुल्क का हमने 7 दिन का टूर किया। पहाड़ों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सफ़र था, तकरीबन 1300 किलोमीटर, और 3-4 जगहों पे जाके हम रुके। देखें अगर बाहर ध्यान से तो छोटी छोटी जो लेक्स हैं वो नज़र आ रही हैं। यहाँ हमने एक लेक को विज़िट किया जहाँ पे गंदक का पानी था, जो जल्द की बीमारियों के लिए बड़ा ज़बरदस्त, काफ़ी लोग वहाँ आए हुए थे। फिर ये देखिए शहर से मेरा ख्याल है हम थोड़ा बाहर निकल गए हैं। इस वक्त जो मंजर हमें नज़र आ रहे हैं ये छोटी छोटी जो शहर से बाहर कॉलोनियाँ होती हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, गालबन अब हमारे सामने वो है। ये देखें ये तकरीबन 2, 4, 6, 8, 10 या 14 मुख्तलिफ़ तरह की वो जो टाइम बताने वाली या घड़ियाँ हैं या कुछ और चीज़। यू नो व्हाट इज दिस? साइंस टाइमिंग्स? यू आर नॉट श्योर? नो प्रॉब्लम। नहीं, ये आपके अच्छे मौसम में अच्छी क्लियर पिक्चर जो है छोटी छोटी लेक्स की वो नज़र आ रही है। कुछ बादल हमारे से नीचे रह गए। थोड़ा इसको फोकस करके ज़रा करीब करते हैं। जो बुल्गारिया में हमने जो चीज़ देखी है, एक तो यह है कि थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह ब्लू रंग का पानी, और फिर पहाड़ों के बीच में तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, लंबी लंबी झीलें, दरिया। ये अब ये आगे गालबन पहाड़ों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। ये आप देख सकते हैं फिजियर अब ये जो पहाड़ों का सिलसिला आप देख रहे हैं, हमें 7 दिन काफ़ी मौका मिला इनके अंदर जो सड़कें हैं उसमें ट्रैवल करने का, और इसके अंदर बहुत लेक्स भी थी। एक इलाका 7 लेक्स का था, वहाँ भी गए, यूनान भी गए। बहरहाल ये वीडियोस आपको मेरे बाकी दिनों में जो मैंने अपलोड किए वो आपको देखने को मिल जाएंगी। खूबसूरत सा मंज़र, बादल नीचे, फिर उसके नीचे पहाड़, पहाड़ों के बीच में ये जो छोटी छोटी आबादी आप देख रहे हैं, ये बड़ी खूबसूरत मंजर पेश करती है। सड़क पल खाती हुई शाम की तरह इन आबादियों तक ले जाती है, लेकिन ऊंचाई से ये इतने क्लियर नज़र नहीं आएंगे। कमाल किस्म का मंजर है। हमारी जो फ़्लाइट है वो अब बादलों से ऊपर पहुंच चुकी है। वाइट कलर के चमकते हुए बादल आप नीचे देख रहे हैं। कुछ आबादियाँ भी नज़र आ रही हैं। देखें जी, फ़्लाइट के दौरान जब टर्बुलेंस, जब जहाज़ हिलता है तो फिर किस तरह का मंजर जो सामने आपके आते हैं। देखें कितना ज़्यादा हिल रहा है इस वक्त जहाज़, लेकिन ये पार्ट ऑफ द फ़्लाइट होता है।